Hello everyone and welcome back to the Yuva Unplugged episode 8. We are so honored to have someone truly inspiring with us, Ms. Sarika Bansal, Rural Chair via Delhi, leading the Taxation Department of MNC, State Spokesmanship, CSL Haryana, has walked through her share of twists and turns, yet continues to stand with strength, grace and deep wisdom. So hi ma'am, how are you? I'm good. I'm very happy to be here amongst you for Thank this you podcast. so much ma'am. So ma'am, can you recall a time when life was completely off track and how did you respond to that situation? So if I say the life was completely off track, so that has not been happened once. It has happened many times. Because मुझे लगता है life is always uncertain. But if I recollect from my childhood, so when I was in 11th grade, because मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से आती हूँ, मतलब I hail from a village in Haryana. So when I was in 11th standard, that time my father met with an accident. So he was on bed for completely 1 year. So that time I was not aware that how to continue my studies and how to take care of the family also, because we had a store in our village, the grocery store, that who will sit there, who will take care of that time. So I think that was the first incident, very uncertain time I faced in my life. And yes, so उस टाइम पे मुझे याद है, मुझे मेरी मम्मी की एक बात हमेशा याद रहती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो जब उस टाइम हमने देखा तो then I sold vegetables also that time. I sat on the shop for completely 1 year. And yes, I would say I would like to just quote that incident as of now. Only one incident. So when life was completely off track, but you sail through it and you learn many things out of it. Yes मैम, वो जर्नी भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल रही होगी आपके लिए. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल रही. मतलब मैं तो हमेशा ये कहूँगी कि आई एम लर्निंग थ्रू लाइफ ग्रिल्स. लाइफ has been the main university for me. Yes ma'am. Who has taught me. True ma'am. So ma'am, for the today's episode, our theme is off script but still standing. Like ये phrase आपके लिए क्या define करता है? देखिए, हम सब human beings हैं and we all want the progress in our life. We make some plans. But जब हम जो plans बनाते हैं उसके accordingly life नहीं चलती है, तो then we say it is offbeat. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली उस टाइम पे offbeat होती नहीं है, बिकॉज जब हमारे प्लान्स काम नहीं कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है जो ऊपर भगवान है ना, उसके प्लान्स काम कर रहे होते हैं एंड उसने आपके लिए ऑलरेडी एक रास्ता सोचा होता है. तो वो जो रास्ता सोचा होता है, बस आपको उस रास्ते पे लेके जाने के लिए आपकी लाइफ ऑफ ट्रैक होती है, ऑफ बीट होती है. सो दैट्स हाउ आई सी दिस. हम भाई यूजुअली लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथों में कुछ नहीं लिखा होता, जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होता है. बिल्कुल. और मेरा ये मानना है, ऊपर वाले के जो प्लान होते हैं ना, वो आपके प्लान से बहुत बढ़ के होते हैं. बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. इफ आई एम सिटिंग विद यू टुडे, इट हैपनिंग फॉर अ रीजन. If I met you through YI, it happened for a reason. So everything is already destined. That's what I believe in. Yes. So sometimes challenges feel like breakdown, but they are also breakthroughs. So how do you define growing through adversity in your own life? So one example I have given you for the 11th grade. Yes. Then because I studied throughout Hindi medium till my graduation in Haryana. Then because I saw a tough childhood. Then I was always like, I have to do something in my life. So and I had to do something, then to do CA, studying English medium for the first time while doing chartered accountancy, and to come to a bigger city, settle in this environment without family. You have to struggle from all the fronts. So that was also one of the challenge. And later on life, like I cracked CA in my first attempt. Then later I worked at good places also. I started my career with one of the big four where everyone wants to work. Okay. And I made very good friends. But throughout this time, I would say, you say that those were the adversities, but I say those were the moments which has helped me to grow in my life. Experiences teach you Experiences teaches you a lot.
मुझे लगता है केवल बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता है. जब आप रियलिटी में लाइफ के सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, सो देन दे मेक यू अ मेटल बॉडी, mentally, physically, from all the perspective, and then you know how to handle the life situations well. That's true, ma'am. So ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी रही अभी तक, उन एक्सपीरियंस से ही आपने कुछ सीखा हो, लाइक जितना भी आपका स्ट्रगल रहा, और आज का जो यूथ है, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि जो भी करंट सिनेरियो में वो लोग स्ट्रेस फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में, या जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो उसके थ्रू ओवरकम कैसे करना चाहिए? नहीं, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लाइफ हैज बीन द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर मी. मतलब मैंने बचपन से स्ट्रगल को लेके, बिकॉज मैं ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ मेरे बचपन में लाइट भी नहीं होती थी. मतलब हम पढ़ने के लिए भी, आज आप सुनोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट हम पढ़ने के लिए भी वो जो मिट्टी के तेल का लैंप होता था ना, कैंडल लाइट, हमने उसमें पढ़ाई की हुई है. और मतलब मैंने खुद ग्रेजुएशन तक सर पे मटका रख के पानी भरा हुआ है मेरे गांव में. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे पास बहुत स्कोप है काम करने का. क्योंकि आपके पास जो है, आप उनको देखिए, शायद उनके पास वो भी नहीं है. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो आज का है, उनको मुझे लगता है कि कभी भी ना निराश नहीं होना चाहिए. लाइफ में मोमेंट्स आएंगे, ब्रेकडाउन आएंगे, बट वो ब्रेकडाउन अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखें ना, तो वो आपको सिखाने के लिए आते हैं. और मैं एक बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहूंगी कि देखिए, कुछ भी आए, कोई भी ऐसा मोमेंट है जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, बट वो है तो एक रात ही ना. रात के बाद सवेरा तो होना ही है एक दिन. तो बस आपको सवेरे का ही तो इंतजार करना है, उस रात को ही गुजारना है. और वो जब रात आती है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको कभी भी चलना नहीं छोड़ना चाहिए. जो मुझे आजकल लगता है कि यूथ बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, वो डिप्रेशन में तो आना ही नहीं चाहिए. मुझे लगता है अगर आप कुछ और भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रांग, मेक योर सेल्फ फिजिकली स्ट्रांग. So this is the one message which I really want to give to the youth as on date. If I am talking to you today, you are studying in JIMS Vatan Kunj, which is a very good institution. So grow yourself from all the perspective. If you're not getting good marks, so that doesn't mean that your life will end here. You really need to, figure out what you really want to do and what makes you happy. Just set some bigger goals in your life. मतलब डेली बेसिस पे मेरे डैड भी मुझे यही चीज़ कहते हैं कि कीप मूविंग, आगे डेस्टिनेशन का कुछ नहीं पता, वो अगर होगा तो काफ़ी अच्छी भी मिल जाएगी. एंड यूजुअली यही होता है कि काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बट अगर इफ़ यू आर स्टिल मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स एंड एम्स, तो फॉर श्योर आपको वो चीज. बट उसके लिए मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, हम एक एजुकेशन मैकेनिज्म में, इंस्टीट्यूशन में आते हैं, दैट वी कम थ्रू वेरियस सिनेरियोज इन अ लाइफ. कि हमें डॉक्टर बनना था, इंजीनियर, वहां नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, देन वी लैंड अप इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, देन यू डू इट. बट देन लेटर आई थिंक you need to really find out your ikigai, what really makes you happy. So your ikigai can be, when you contribute in someone else's life selflessly. That is my ikigai. With your pure intentions. That makes me happy. Yes. Because when I do it, I just forget everything else. Then I am completely in that moment. Because I hail from a village, I have seen so many struggles for studying also, for survival in life also. So till today, whenever I am taking some moment, so that keeps on moving in my head. Ki how can I contribute towards those students' life, towards that village life as on date. Yes. तो मतलब एक मुझे मे बी थ्रू आउट आवर कॉन्वर्सेशन लेटर विल टॉक मोर अबाउट इट. सो एक काफी थिन लाइन है बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो. सो आप उस थिन लाइन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे और उस दोनों चीजों का डिफरेंस कैसे बताओगे आप? होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो. हाँ जी. ओके.
सो होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो, मतलब मैं इस चीज को इस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगी कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप किसी एक गोल को, किसी एक बिजनेस पर्पस को, किसी एक पर्सन को, इट कैन बी एनीथिंग, यू आर स्टिकिंग टू इट. लेट्स टेक एग्जाम्पल, आपने कोई अपना एआई का बिजनेस शुरू किया. आपको लगा आजकल हर जगह एआई की लहर है, तो चलो मैं भी एआई में ही कुछ कर लेता हूँ. बट दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी. बट यू स्टार्टेड इट, but you are not making profits out of it. You are not able to make it run. Then maybe your peer group is growing in this, but you are not able to do it. But you are taking it on your head कि नहीं भाई मुझे तो करना ही है ये, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ. तो if you will keep on sticking to it and you will keep on wasting your years on it, so it's an holding on. Then you should think that I think this is not my cup of tea, or this is not meant for me, and you should release it. दिस आई टॉक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस गोल्स. एंड हम सब लोग यहाँ पे यंग हैं, तो मुझे लगता है यंग एज में एक जो हम बच्चों में या इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है वो इन्फैचुएशन होता है. हम किसी को लाइक करने लग जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं, देन हम उसी को ही लाइफ बना लेते हैं अपने. आज के टाइम पे तो काफी होता है कि हाँ, अगर आप, तो मैं जो आजकल के मेन आपकी एज में जो मैं सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूंगी, यू शुड नॉट स्टिक टू द human beings, be it in any form. You should never stick to any human beings. This is a time to grow, learn, unlearn and then grow again. और उसके लिए मतलब you should not stick and hold on something, and you should let it go, and then just grow yourself. Because see, you should not see yourself just to, you have to play a role in your life. You have to play a role for this making a building Bharat. yes, where you have to play a very bigger role. So this is where I should differentiate from my example, from my life. Maybe I'll not tell you the instance, but whenever I have hold on something in my life, I have screwed up myself. okay, But the day I just let it go, I have grown like anything, mentally, physically and everything. So that is my message. Don't hold on, just let it go. Give your 100% in whatever time frame you have decided, be it anything. When it is not materializing, just think God has some bigger plans for you, and then you just release it. but let's take an hypothetical example. If a person is onto something and वो उस चीज को complete नहीं कर पाया, and अगर वो इस mentality से सोच रहा है कि let me stick to this thing and let me try again and again, और फिर भी वो चीज नहीं हो पा रही, तो उसमें वो हम कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं लेट इट गो करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी के पास भी ना टाइम अनलिमिटेड नहीं है. जब आप किसी भी चीज को एक टाइम फ्रेम में डिसाइड करके बांध देंगे ना, और जब आपको लगेगा मुझे इस टाइम फ्रेम में इस चीज को 100% देना है, फिर आपके पास उस टाइम फ्रेम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. और ये डिस्ट्रैक्शन ह्यूमन बीइंग्स, बैड हैबिट्स, बी इट स्मोकिंग, बी इट ड्रिंकिंग, बिकॉज हम इस एज में होते हैं तो आजकल पीयर प्रेशर की वजह से हम इन चीजों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं. यू थिंक दैट दिस इज अ स्टेटस सिंबल, बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ स्टेटस सिंबल. यू शुड फोकस इन योर वाइडर गोल्स. यू शुड डिफाइन के what are your roots, what your parents have taught me. आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां पे आपके क्या वैल्यूज हैं. मेरे अकॉर्डिंगली आपको हमेशा उस चीज से स्टिक रहना चाहिए, बंधा रहना चाहिए, चाहे लाइफ में कहीं पे भी पहुंच जाओ. दैट इज व्हाट आई फॉलो इन माई लाइफ. You basically mean you should be down to earth. You should be down to earth and you should stick to your roots. जो आपका ओरिजिनेशन पॉइंट है ना, योर ओरिजिनेशन पॉइंट इज योर मदर एंड फादर. उन्होंने आपको क्या सिखाया है, आपका चाइल्डहुड कहाँ से आया है. जैसे इन माई केस, इफ आई से आई हेल फ्रॉम अ विलेज, आई लर्नड वेरी मेनी वैल्यूज. मैं उन वैल्यूज को आज भी फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, इररिस्पेक्टिव आई गो टू एनीवेयर, बिकॉज आपका एसेंस वही है. अगर आप मुझे लगता है इस दुनिया के छलावे में, दिखावे में आके दूसरे लोगों को देख के अपने आप को चेंज करना शुरू कर दोगे ना, तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप रियलिटी में हैं. जब व्हेन यू विल स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, टू योर वैल्यूज, तो आप ग्रो भी करेंगे, बिकॉज आप उन्हीं से ही हैं और उन्हीं से आप ग्रो करेंगे. फॉर श्योर. सो एक चीज और पूछनी थी कि जब भी कुछ भी इंस्टेंस होता है, तो
for example, if you go out of your senses, you go out of control. So उसमें आप अपने आप को grounded feel करने के लिए कैसे help करते हो? Like for yourself. So for myself, I never forget my roots. I never forget my roots. So whenever I feel that I'm going off track, I just go sit in front of my Kanaji and try to remember from where I'm coming. And I have set some clear goals in my life. I just remember these two things, my goal and from where I come from. उसके बीच का मैं सब गायब कर देती हूँ. मैं जहाँ से आती हूँ मैं बस उसको देखती हूँ और मुझे जहाँ पहुंचना है मैं बस उसको देखती हूँ. और फिर मैं ये देखती हूँ अच्छा जो चीज अब मुझे परेशान कर रही है वो इन दोनों में कहाँ फिट बैठ रही है. अगर वो फिट नहीं बैठ रही है तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. दैट्स हाउ आई स्टे ग्राउंडेड. अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रूट्स क्या है और आपका गोल क्या है. और आपका गोल भी मे बी यू विल डू मोर कॉन्वर्सेशन अराउंड इट. श्योर. सो आपने एक 11th स्टैंडर्ड वाला अपना इंस्टेंस बताया. सो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अर्ली 20s में आपके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हुई थी जिसके बारे में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहोगे या जिसमें आप थोड़ा सा अनसर्टेन फील किए थे? नहीं, अनसर्टेन देखो मेरी भी लाइफ में कुछ और ड्रीम्स थे विच आई कुड नॉट फुलफिल बिकॉज ऑफ माई फैमिली सिचुएशंस एंड ऑल दैट. And then you get some emotional turmoil also in your life. So through that time, you know, when the life shakes you, then मुझे ऐसा लगता है which I have felt right now कि आपको उस टाइम पे ना खुद को डिस्कवर करना होता है. बिकॉज हम पैसे कमाने के लिए इन सब करने के लिए हम एक रेस में भागते चले जाते हैं. आफ्टर पॉइंट आई थिंक यू शुड स्टॉप. एंड वो आपको केवल किसी के बायोग्राफीज पढ़ के वहां से नहीं सीखना होता है. यू रियली नीड टू पुट योर सेल्फ इन लाइफ सिचुएशंस. जैसे मैंने अपने आप को फिर डिस्कवर किया. मैंने जो मैं रूटीन में कर रही थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया. आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ. देन आई डिस्कवर्ड देन आई अगेन पिक्ड अप माई भरतनाट्यम डांस. मुझे लगा दिस इज समथिंग विच इज थ्राइविंग मी. आई एम लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक which is my different kind of to handle my emotional disbalance. I play lawn tennis. When you play lawn tennis, so then you really think, okay, you have to pick this sport. You have to hit the ball. Then you can hit the ball. You can see it in lime term. Okay, you are hitting your hurdles. You are hitting your obstacles to the maximum without getting distractions. When you are on the court, जब आप लाइफ के कोर्ट में हो तो जैसे जैसे आपके पास हर्डल्स आएंगी द वे यू आर हिटिंग द बॉल आपको उसी तरीके से हर्डल्स को भी हिट करना है. यू हैव टू स्टे फोकस्ड. तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा. आप पेंटिंग से खुद को डिस्कवर कीजिए. व्हेन यू विल डू पेंटिंग, आई हैव पेंटेड ऑल्सो. whenever I don't feel like anything, I start painting at night. And I paint as per my emotions. I can't paint. If you will ask me, you have to paint right now, I can't paint. It comes with the emotions. So आपको लर्निंग केवल यूनिवर्सिटीज में नहीं जाके होगी. थ्रू पेंटिंग, थ्रू डांस, थ्रू म्यूजिक, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू social causes, you discover yourself. How has failure shaped you, the way you define your success? Failures लाइफ में कभी ना कभी तो फेलियर आए हो. नहीं आए हैं, बहुत आए हैं. थोड़े टाइम पहले भी आए थे. तो मतलब मेरे लिए तो फेलियर इज अ टीचर. As I said, if you will see my social media accounts also, there I have mentioned learning through life grill. तो जब हर्डल्स आती है मेरे लिए तो पेन नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. मतलब when the hurdles come, अब मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ, अच्छा अब ये मुझे क्या सिखाने आया है. What is the new thing it will teach me. जैसे कई लोग होते हैं ना कि एक, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जब तक हर्डल्स नहीं आते एक टास्क कंप्लीट करने में तब तक आपको अच्छा नहीं लगता. एंड कई लोग होते हैं कि एक स्मूथ वे प्रेफर करते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने. नहीं, आप देखो ना, वो अगर हार्ट बीट अगर सीधी चलेगी तो मीन्स यू आर डेड ना. अगर वो वेव्स में रहेगी तो इट मीन्स यू आर मूविंग. दैट्स ट्रू. सो और कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे अपना लाइफ में जो आपको हुआ हो जिसे आप अभी भी ओवरकम ना कर पाए हो या ऑलरेडी कर चुके हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मतलब मुझे हमेशा मैंने लाइफ में प्रॉब्लम फेस की वाज टू
handle the emotional breakdowns. Because you can handle everything, but how to handle the emotional breakdowns? I think that was the one thing which I have struggled a lot in my life to overcome. But उसको overcome करने के लिए, as I told you, 3-4 mantras हैं उसके लिए, which I have found in my life, is that you should, believe in God. I worship a lot. I do chanting, I do morning puja, fasting, I do everything. And एक ना आप अपना कुछ भी करें ना, आप अपनी नीयत साफ रखें. You should live your life with integrity. Because when I faced like the major breakdown in my life around 4 years back, so that time, as I told you, I just left everything. And मतलब मुझे उस टाइम पे था कि अब now I have to reinvent the wheel. तो reinvent the wheel में मुझे लगता है हमारी जो अपना कल्चर है उसमें बहुत कुछ है. I actually went and stayed in a yoga university for 2 months regularly. So there I learned many things. ध्यान योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा. तो होता क्या है ना, आपको लाइफ में इन्हीं 4 सेग्रीगेशंस में अपनी लाइफ को डिफाइन करना होता है. आपको भक्ति करनी है. मैं आपको बताती हूँ, जब आपकी नीयत साफ होती है और आप भगवान के लिए समर्पित होते हो, एंड यू हैव अ वेरी गुड कॉज टू फिगर आउट गोल, तो भगवान अपने आप आपको लोगों से मिलवाता है जिससे आप वो अपने पर्पस को सॉल्व करके एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ. इट्स माई टेस्टेड मंत्रा. देन you have to do your karma also. If you are in university, if you are here to study, you should study with 100%. If I am handling the corporate act division of one of the MNC, so I have to do that karma very well. And one more mantra which I have learned in my life, where that also I learned through yoga only. They said that just start giving selflessly. और मैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज हम लोग मिल रहे हैं ना, that is why I came in Young Indian that time. That I really want to be in one organization through which I can selflessly contribute to the people's life. And I know I am the rural right now. So now also I try to give the contribution to people's life selflessly, without any intention, nothing. जब आप किसी को without any cause के देते हो ना, आपके पास वो मैनिफोल्ड होके वापस. मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. I have tested it. And if you will say which values I stick in my life, is the resilience. Whatever I pick up, then I make it to the end. And उसमें मुझे लॉन टेनिस ने बहुत मदद किया. When I picked up the lawn tennis, I start playing it. I had severe injuries. मुझे 6 महीने लगे थे वो स्पोर्ट को पिक करने गए. And I picked up that sport when I was at the lowest in my life. तो मुझे इतनी बार इंजरी हुई, बट मैंने भी सोच लिया था खेलना है तो खेलना ही है. तो वो जब खेला तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. तो रेजिलियंस, जस्ट स्टे ऑनेस्ट, स्टिक टू योर रूट्स एंड सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड. मुझे जब कुछ भी नहीं सूझता है, इवन आज भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ नहीं करती हूँ. आई जस्ट गो होम, सिट इन फ्रंट ऑफ कान्हा जी, आई टॉक टू हिम, और आई गो टू टेम्पल, I talk to them. बट उसके लिए आपको नीयत साफ रखनी पड़ेगी अपनी. So, आपने जैसे बोला कि आपकी लोएस्ट में आपने एक स्पोर्ट को पिक किया, तो स्पोर्ट के अलावा बाकी सारी चीजों के लिए भी लाइफ में कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से बहुत जरूरी होती है कि नहीं होती? बहुत ज्यादा जरूरी है. I said that consistency is must. Whatever you pick up, then you pick up one thing in your life. But then you should, make sure that you fulfill it. आप वो चाहे पढ़ाई ले लो, आप चाहे वो अपना जिम ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, या आज का ये पॉडकास्ट ले लो, या फिर सेल्फलेसली किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप एक चीज लो, बट उसमें भागो मत, धीरे धीरे करो, बट कंसिस्टेंट रहो. देन ओनली यू कैन फुलफिल इट. एंड जैसे आपने बताया कि योगा यूनिवर्सिटी में आपने अपने आप को एनरोल किया, सो वो यूनिवर्स अलग होगा, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्स, बिल्कुल. सो ऐसा क्या आपको उसमें अलग दिखा उस यूनिवर्स में? मैं मतलब बीइंग यू आर यंग पीपल, मैं आप सबको ये चीज बहुत, मे बी इफ यू कैन लर्न वन थिंग फ्रॉम माई दिस पॉडकास्ट टुडे, व्हेनेवर यू हैव समर वेकेशंस, 30 days का सबका ऑफ होता है. हाँ जी. और मुझे लगता है जो चीजें मैंने अपने अर्ली 30s में सीखी,
अगर आप लोग अभी अपने 20s अर्ली 20s में ही सीख लोगे, दैट विल बी लाइफ टर्निंग फॉर यू. वो हमें एक ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, योगा यूनिवर्सिटी में जाओगे, आई वेंट टू साउथ, वहां पे उनका 30 डेज का YIC का प्रोग्राम होता है जिसमें वो अपने योगा के ग्लिम्स देते हैं. यू गो देयर, स्टे देयर एंड डू दैट 30 डेज कोर्स. हो सकता है उस टाइम पे आपको चीजें नहीं समझ में आए, बट वट एवर यू विल लर्न देयर, व्हेन यू विल कम बैक, दैट विल प्ले ए मेजर रोल इन योर लाइफ. इट विल रियली टीच यू. जो आपको, आपने सही कहा, आपको इस वर्ड में ना वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं. दैट वर्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. बट आप उस वर्ड से जब यहाँ पे वो चीजें लेकर आओगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड एनी ह्यूमन बींग्स टू बैंक ऑन. मुझे लगता है हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मेन हर्डल है, दैट इज हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट. ह्यूमन बींग्स पे कैसे हम लोगों को डिपेंडेंट नहीं रहना है. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. एक लास्ट क्वेश्चन है. इफ समवन लिसनिंग राइट नाउ फील्स लाइक देयर लाइफ इज कम्प्लीटली ऑफ स्क्रिप्ट, तो उनको एक क्या हम सच बता सकते हैं जिससे वो ओवरकम कर पाए? नहीं, मैंने जैसे शुरू में ही बोला था, ऑफ स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता है. दिस इज वन. कई लोग सोचते हैं कि हाँ. ये चीज अब यहीं तक थी, बट लाइक कई लोग उनको आगे फर्दर ट्राई करने का ट्राई ही नहीं करते. नहीं, मैं उस चीज में ना एक चीज बोलना चाहूंगी कि एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, ईच एंड एवरी वन हैज अ सर्टेन रोल टू प्ले. नथिंग इज परमानेंट हियर. अगर आप एक जगह है, वहां पे आपका नहीं बन रहा है पढ़ाई में या करियर में, देन यू शुड रियली फिगर आउट योर इकिगाई. मतलब आप मुझसे पूछोगे तो, मतलब मे बी आई एम नॉट टेकिंग दैट क्वेश्चन, बट वन बुक विच आई हैव रेड अराउंड 100 times, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ओनली वन बुक आई हैव रेड, दैट वाज इकिगाई. मैंने उस बुक को बार बार पढ़ा है, बार बार केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने उसमें से एक एक चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है. मतलब जितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकती, मैंने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया, एंड दैट हैज रियली शेप्ड माय लाइफ. बट आपको वो उसमें जो लिखा है उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो ऑफ बीट कुछ नहीं होता है, आपको उसमें से सीखना है, सीख के और बस निकल जाना है. और आपको फिर खुद ये चीज सोचनी है कि वो ऐसी कौन सी चीज है विच कीप्स मी मूविंग. जब आपको वो पता चल जाता है ना, तो आपको फिर कुछ भी बर्डन नहीं लगता है. So, alright, ma'am. It's time for our rapid fire round. Okay. So, quick answers only. No thinking too hard. So, first question is, if your life right now were a movie, what genre would it be? I think it's moving up, recovery phase. What would you title the chapter in your life where everything went off script? Roller coaster ride. Hero, Heral, a rebel, or wanderer? Which I role did you am play hero in? of my own life. That's amazing. What song would you play during your everything's falling apart scene? एक गाना है तू झूम, दुख भी तेरा सुख भी तेरा. When everything crashed, what did your inner voice whisper to you? ये भी कुछ सिखाने के लिए आया है. In one word, what did struggle teach you? It makes me more stronger. A small habit you picked up in chaos that still helps you today. Play lawn tennis. Amazing. What did standing back up look like for you, literally or emotionally? मेरे लिए, मतलब मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, बैकअप कुछ नहीं होता है. यू पिक अप वन गोल, यू मूव टुवर्ड्स इट, देन इफ इट्स नॉट हैपनिंग, यू लर्न फ्रॉम इट. If pain was a person, what would you say to it now? Come, teach me more. What's stronger now, your heart, your mind, or your faith? My mind. A book, a movie, or quote that gave you a new perspective as a young person? Book, I have already told Ikigai, and quote, I would say, live your life with integrity. What's your comfort food after a mentally draining day? Simple chapati and moong ki dal. That's it. What's one self-care ritual you never skip, even on a rough days? So, I go for Panchkarma treatment in yoga. Maybe after 2 months or 2.5 months. What's scarier, starting over or staying back? Staying stuck. Worst thing you can do in your life. If you could tell your 18-year-old self one thing, what would it be? You can do anything. What makes you feel most like yourself, even when life feels you off track? Just stay true to yourself.
So thank you so much, ma'am, for being here. Your journey reminds us all it's okay not to have it all figured out, and that strength isn't back about never falling, but about choosing to rise anyway. And to every listening, life does not always go as planned, but you still get to write it the story. This you were Unplugged. Until next time, stay raw, stay real, and keep standing, off script or not. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And I think to all the Yuva